Okay, so in last lecture we have discussed one theorem for the oscillation. Okay, so we continue with that. So yes, this is the theorem which was proved in last lecture. So let A subset of R is to N, let F from A to R be a bounded function and let A belongs to A. Then F is continuous at A if and only if oscillation of Fa is equal to 0. So we prove this theorem. Now we are going to discuss this theorem. So let A subset of R is to N. Yes. Let A subset of R is to N be closed. Okay. Then let F from A to R be a bounded function and let epsilon greater than 0. Then the set B is equal to X belongs to A. Oscillation Fx greater equal to epsilon is closed in Rn. Okay, let me first discuss what is the meaning of this, what we want to prove and what we have. हमारे पास क्या है and now what we want to prove. कौन बताएगा क्या है? वो तो डेफिनेटली सबको पता चल गया होगा. Sir, we have A is Yes. आर एन और ए को हमें बोला है कि ए क्लोज है और हमें दूसरा फंक्शन दिया है जो ए से आर तक का है, उसको बोला है कि वो बाउंडेड है. तो देन हमें ऐसे प्रूव करना है कि सेट ऑफ ऑल ऑसिलेटिंग पॉइंट्स यस वो क्लोज्ड होगा आर एन में विथ x बिलोंग्स टू a, है ना? हाँ, तो क्लोज Yes. सबसेट में से तो क्लोज Yes. होगा आर में. Yes, Rn में वो क्लोज है ऐसा हमको दिखाना है. That means we have a set R raised to n. Now we are considering a subset A, which is A subset of R raised to n and which is closed. That is we have number 1. Okay, हमारे पास number 1 में ये. Second thing, f A to R be a bounded function. That is our second given data. And epsilon greater than 0, वो तो हम everywhere we are considering epsilon always greater than 0, and we want to prove that B, which is the set of oscillation Fx and x belongs to A, which is always greater equal to epsilon, which is closed in R raised to n. So the set B is closed in R raised to n. So how we can prove this? Anybody? Any guesswork? कैसे करेंगे? चल हम उल्टा सोचते हैं कि आई वांट टू प्रूव दिस इज क्लोज. तो क्लोज के लिए कौन सी डेफिनेशन थी? तो वी कैन रिवाइज इट फर्स्ट. ओके, चलो हम पहले रिवाइज करते हैं. क्लोज किसको बोलते थे हम? यस, दिस वन. ओके, दैट मींस अ सबसेट A, सबसेट ऑफ R raised to n is said to be closed if its complement, that means R raised to n minus A करेंगे which is open. So we can consider this one, है ना, कि उसका उल्टा जो है मीन्स उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम ओपन दिखा दें, then we can say that it is closed. Yes or no everybody? Understand? Yes sir. Okay, what about others? Yes sir. Okay, means Yes हम sir. प्रूव करना है क्लोज, तो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसको हम ओपन दिखा दें, देन अवर वर्क इज डन. ओके, अवर प्रूफ इज डन. सो वी स्टार्ट विद दैट. सो यहाँ पे देखो हम उसी से स्टार्ट करेंगे. Yes. Okay. So let B is equal to x belongs to A, oscillation Fx greater equal to epsilon. We are considering this set B. Okay, जो हमको दिया है वही. Now we want to prove that this is closed. तो हम क्या करेंगे? उसको R raised to n में से subtract कर देंगे और उसको बोलेंगे that is open. So we want to show that R raised to n minus B is open. Yes or no everybody? ओके, यहां तक सबको पता चल गया? अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Yes sir. Yes sir. ओके, नाउ वी वांट टू प्रूव दिस इज ओपन. सो पहले ओपन के बारे में सोचते हैं कि ओपन के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा. अगर आपने डाइजेस्ट कर लिया देन योर प्रूफ इज वेरी इजी, अदरवाइज इट विल बी
panic for you. Okay, यहाँ पे देखो, a subset A, subset R raised to n is said to be open. Okay, I want to prove that it is open if for each A belongs to X, means आपको एक पॉइंट लेना है belongs to A में से, there exists delta greater than 0 such that उसका जो ओपन बॉल है वो उसी सेट का सबसेट होना चाहिए, सबसेट और इक्वल टू. Okay, everybody, so if we prove this then we can say that A is open. Okay, तो हमारे केस में हमको दिखाना है R raised to n minus B. Okay, means yeah, we cannot use this one, we use always this one. Okay, minus B is open. तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, चलो बताओ क्या दिखाना पड़ेगा मुझे. हमको ये दिखाना पड़ेगा कि R raised to n minus B में कोई एक एलिमेंट है, सपोज वो A है, और वो A एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ओपन बॉल है वो R raised to n minus B का सबसेट है. Yes, that means A belongs to B A delta अगर मैं लेता हूँ, which is subset of R raised to n minus B. अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ, then my proof is complete. Yes or no, everybody? Yes sir. Yes, sir. तो ये यस, तो ये थोड़ा आप लिख के रखो, हम यही प्रूव करेंगे. ओके, सो कीप इन योर माइंड, A बिलोंग्स टू R रेज़ टू n माइनस B, कोई एलिमेंट लिया, अगर वो बिलोंग्स टू B, A मीन्स ओपन बॉल सबसेट ऑफ R रेज़ टू n माइनस B, देन वी कैन से दैट इट इज ओपन. सो वी स्टार्ट विद दैट. यस, ओके, यस. अब देखो, आई कंसिडरिंग x बिलोंग्स टू R रेज़ टू n माइनस B. ओके, मीन्स हमने एक पॉइंट लिया x बिलोंग्स टू R रेज़ टू n माइनस B. B आर्बिटरी बट वी आर कीपिंग इट एज कांस्टेंट, मीन्स फिक्स. ओके, मीन्स उसको हमने फिक्स बोला है, आर्बिटरी है लेकिन वी आर कंसिडरिंग फिक्स. ओके, अब R रेज़ टू n माइनस B है, तो वी हैव द टू पॉसिबिलिटी, विच आर दे? R raised to n minus B है, तो we have the two possibility. Number one is either x not belongs to A and number two is x belongs to A, क्योंकि A is the different set. Yes or no? Sir. Yes. Okay, so we are considering two cases. First one is x not belongs to A. Okay, चलो x not belongs to A हमने फर्स्ट केस कंसीडर किया. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को जितना मैंने डिस्कस किया उसमें? क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो आपका पूरा प्रूफ कंप्लीट हो जाए अच्छी तरीके से. इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? No sir. Okay, very good. Okay, now we go for first case. Case number 1, x not belongs to A. क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं R raised to n minus B, तो B के कॉम्प्लीमेंट में A भी आ सकता है ना, तो A के अंदर x हो सकता है या फिर A के बाहर x हो सकता है. वी आर कंसिडरिंग टू पॉसिबिलिटी. सो केस नंबर 1 इज x not belongs to A, बट वी हैव द A is closed. ओके, अगर A क्लोज है then R raised to n minus A is open. Is it true or false? Okay, so as per the definition of open set, we can say that there exists delta greater than 0 such that x belongs to open ball x delta, which is subset of R raised to n minus A. So this is the purely definition of open set. Yes or no? Yes sir. Understand everybody? Okay, then next one. Now we know that this is the oscillation. Okay, B is containing oscillation, so we can say that B is subset or equal to A. Okay, always a B subset of equal to A ही होगा. Okay, so that means B subset of equal to A, then we can say that x belongs to ball x delta जो है वो अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में का सबसेट इक्वल टू है, देन इट इज आल्सो द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ R raised to n minus B. इज इट ट्रू? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes sir. ओके, सो मीन्स यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो अगर किसी को नहीं पता चला है तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ, लुक एट हियर. सो यहाँ पे देखो क्या लिखा उन्होंने, तो यहाँ पे R raised to n
minus a is open. Okay. Yes, R is to n minus a is open. So as per the definition of the open set, what we have? We have delta greater than 0, that means there exists delta greater than 0 such that x belongs to b x delta, which is subset or equal to this set, that means R is to n minus of a. Okay, but we know that, but we have b is subset or equal to a. So we can say that x belongs to b, x delta subset of R is to n minus a. But this one is also subset of R is to n minus b. Yes or no? That means that we have x belongs to b x delta, which is subset of R is to n minus b. So can we say that R is to n minus b is open? Yes or no? Yes, sir. What about the others? या फिर सो गए? Yes. Sir, here B is a subset of A. तो हाँ. A B का सुपरसेट हुआ. तो हाँ. पहले हमने ये दिखाया कि ओपन बॉल जो है वो Rn माइनस A में है, तो उसको Yes. हम B का सबसेट कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि B छोटा है ना जेवी, B छोटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट बड़ा होगा. हाँ, यस सर, यस सर. है ना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट बड़ा हुआ, दैट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को भी हायर कर लेगा, मीन्स वो उसको भी खा जाएगा ना. यस सर. ओके, भूख नहीं लगी है ना किसी को? ओके ओके, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी. देखो ऐसी सिचुएशन हो रही है, जो जैविक को मैंने समझाया वो सबके लिए यहाँ पे देखो. दिस इज योर सेट बी. ओके, नाउ दिस इज योर सेट ए. ओके, अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट सोचे आर इज टू एन माइनस ए, तो ये तो बहुत बड़ा हुआ है ना. ओके, बट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर इज टू एन माइनस बी इज ग्रेटर देन दिस वन, मीन्स इससे भी बड़ा होगा कि नहीं? यू कैन सी हियर. एवरीबॉडी यस और नो? क्योंकि ये भी पार्ट उसमें आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर इज टू मीन्स बी. तो ये ऐड हुआ प्लस ये तो था ही, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज सबसेट और इक्वल टू. नाउ अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? सचिन, पार्थ, Yes, sir. धवल, मेगा, Yes. इज देयर एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी पार्ट 1 में, केस 1 में किसी को है डाउट? नो सर एक बार रिपीट कर दो ना. यस, रिपीट कर दे. वेरी गुड. यस, ऐसे आप बोले तो मुझे भी मजा आए कि क्या करना है. तो मुझे भी थोड़ा आइडिया आ जाए. देखो सबसे पहले तो वी आर कंसीडरिंग दिस वन केस, x नॉट बिलोंग्स टू a. अब x नॉट बिलोंग्स टू a को हमने कॉन्सेंट्रेट किया, बट वी हैव a इज क्लोज्ड. अगर a क्लोज है दैट मीन्स r इज टू n माइनस a इज ओपन. यस और नो? Yes. अब ओपन है तो ओपन की डेफिनेशन के थ्रू में व्हाट आई हैव, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग्स टू ओपन बॉल x डेल्टा सबसेट ऑफ r इज टू n माइनस a. यस और नो? ये तो ओपन की डेफिनेशन है एवरीबॉडी. Yes. Yes, sir. ओके, नाउ वी हैव b सबसेट ऑफ a, क्योंकि हमने a की हेल्प लेके b को डिफाइन किया गया है. देखो आप स्टेटमेंट में देखो, क्योंकि x बिलोंग्स टू a, ऑसिलेशन fx ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन. सो वी आर कंसीडरिंग b with the help of a. So b is always subset of equal to a. Okay, so now if I have this one, x belongs to b x delta subset of r is to n minus a, then we can say that this is also subset or equal to this one, r is to n minus b.
यहां तक सबको पता चला? Yes or no? Yes. Yes, sir. Now if I forgot these things means मैं दिमाग में से इसको निकाल देता हूं तो what I have, x belongs to bx delta which is subset or equal to r raised to n minus b. अगर ये डेफिनेशन ही है हमारी, अगर ये सेटिस्फाई करता है then we can say that this set जो यहाँ पे सेट दिया है ना which is open. Now understand everybody? Yes. Okay, चलो फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. ओके एवरीबॉडी डन ना? प्लीज गिव मी अ थंब अगर आपको पता चल गया है तो. यस वेरी गुड वेरी गुड. ओके थैंक यू. नेक्स्ट वन, चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं. नाउ वी आर कंसीडरिंग x बिलोंग्स टू a. अब यहाँ पे देखो आपने x नॉट बिलोंग्स टू a का तो ज्यादा हमारा यूज ही नहीं हुआ, देखो क्योंकि a क्लोज था उसी से हमारा पूरा ये प्रूव हो गया. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? गॉट इट? Yes. 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 Now x belongs to a, we are considering that. Okay. चलो since x belongs to a as well as x not belongs to b. Okay. Now next step क्या हुआ कि a में है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा था ना कि a में है पर b में नहीं है, ऐसा हमने x लिया सेकंड केस में. x belongs to a but x does not belongs to b. तो ये दोनों के बीच में आएगा. Understand everybody? Yes. क्योंकि वी आर डीलिंग विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है ना, तो इसीलिए हमने इसको यहां पे लिया. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन. यस. सो ऑसिलेशन एफ एक्स. ओके, अगर वो बी में नहीं है तो बी को फॉलो नहीं करेगा. बी को फॉलो नहीं करेगा दैट मीन्स इसका रिवर्स प्रोसेस. रिवर्स क्या होगा इसका? इनवर्स. दिस इज ग्रेटर इक्वल टू, सो वी हैव दिस स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन. यस और नो? Yes, sir. ओके मीन्स यहाँ पे देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ. x नॉट बिलोंग्स टू b दैट मीन्स x इज नॉट कंटेन्स एट b. तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन है, उसके बाहर का पॉइंट हो जाएगा. दैट मीन्स ऑसिलेशन ऑफ एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके नाउ अभी हमने ये प्रूव किया था प्रीवियस थियरम में. क्या प्रूव किया था? अगर ये होता है ऑसिलेशन ऑफ एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स डेल्टा माइनस इंफीमम ऑफ एफ एक्स डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन. यस और नो? Yes. ओके चलो यहाँ तक हम पहुंच गए. ओके यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ऐसा मैं मान रहा हूँ. ओके नेक्स्ट टास्क. अब जो हमको प्रूव करना था कि ओपन बॉल इज सबसेट ऑफ इक्वल टू आर रेज टू एन माइनस बी. सो आई क्लेम फॉर दैट. तो क्लेम इज x बिलोंग्स टू b x डेल्टा सबसेट ऑफ r रेज टू n माइनस b. ओके मीन्स b में नहीं है ना, तो इसमें हो सकता है, ऐसा मैंने क्लेम किया कि x बिलोंग्स टू ओपन बॉल b x डेल्टा विच इज सबसेट ऑफ r रेज टू n माइनस b. दैट इज माय क्लेम. नाउ अगेन वी हैव द टू पॉसिबिलिटी. यस और नो? यहां से दो पॉसिबिलिटी ओपन हो गई Yes, sir. है ना. क्या पॉसिबिलिटी आया? अगर वो A में है या A में नहीं है. यस वेरी गुड. दैट मीन्स A में है या A में नहीं है. सो आई एम कंसिडरिंग in place of x taking y. so y belongs to bx delta. but ये y क्या है कि a में नहीं भी हो सकता है या फिर a में हो सकता है. so I considering case a, y not belongs to a, y does not belongs to a. then there exists delta 1, any delta 1 which is greater than 0 such that अभी जो हमने प्रूव किया उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं y belongs to b y delta 1 which is subset of r raised to n minus a which is also subset of r raised to n minus b. this is the as per the case 1. case 1 में जैसे प्रूव किया था similarly you can write down this statement. so is there any doubt up to here? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? Oh, sir.
What about others? No, sir. Okay, now I am going for case B, which is y belongs to A. अगर y A में है तो क्या होगा? So y A में है and y belongs to open ball है. That means y belongs to open ball x delta. So there exists delta 2 greater than 0 such that ball open ball y delta 2 which is always subset of equal to bx delta. क्योंकि हमने तो क्या किया है? This one is superior. Yes or no? Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे ओपन बॉल y डेल्टा 2 विच इज सबसेट ऑफ b ओपन बॉल x डेल्टा. अगर यहाँ पे मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ a के साथ तो क्या होगा? क्योंकि y ऑलरेडी बैठा है और y इसमें है तो वो दोनों का इंटरसेक्शन ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा. अंडरस्टैंड? इज इट ट्रू एवरीबडी? Yes sir, true. Okay, because we are considering y belongs to A और y ओपन बॉल में है एंड वी आर कंसिडरिंग यहाँ पे y belongs to A. तो ये दोनों इसका जो छोटा है इसमें है तो इसके जो स्मॉलेस्ट है उसमें भी हो सकता है कि नहीं? दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन जो है वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा. ओके, नाउ वी हैव बॉल ओपन बॉल y डेल्टा 2 सबसेट ऑफ b x डेल्टा. अब दोनों साइड पे मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ ए के साथ, सेम सेट है इसीलिए हम ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन ओपन बॉल y डेल्टा 2 सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ओपन बॉल x डेल्टा, क्योंकि वी आर कंसीडरिंग सेम सेट. नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस सेट, मैंने उसको सेट में लिया मीन्स f ऑफ z बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b y डेल्टा 2 विच इज सबसेट ऑफ f ऑफ z. क्योंकि सारे फंक्शन अगर आप डिफाइन करते हो तो सेम सॉल्व करेगा कि नहीं, वो टैली करेगा कि नहीं? Yes sir, करेगा. Okay, now we are considering the supremum both side. Okay, we are taking supremum. So whenever you go for the supremum, then subset will convert into the less or equal to. Okay, that means supremum of f of z belongs to a intersection open ball y delta 2 which is less or equal to supremum of f of z belongs to a intersection b x delta. Okay, now we have the supremum both side, so we can define our supremum as per the definition of supremum symbolically mf y delta 2, because here delta 2 is the delta and here delta is original our delta, so mf x delta. Okay, so is there any doubt, any question up to here, anybody? सर डेफिनेशन के हिसाब से तो इधर नॉर्म होना चाहिए ना, तो हमने ये पूरा जो है ए इंटरसेक्शन ओपन बॉल ऑफ बी वाई डेल्टा 2 तो Yes. उसको वो कंसिडर कर दिया. नहीं जयवीर, चलो ओपन बॉल की डेफिनेशन देखते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. आपको सीधा नहीं दिखा है लेकिन वो वहां पे है. चलो ओपन बॉल की डेफिनेशन. यस, ओपन बॉल की डेफिनेशन में क्या था एवरीबॉडी? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा था कि नहीं? हाँ यस सर हो गया था. Okay, that means we are considering a intersection b a delta, so this contains already the norm. Okay, everybody understand? So you are considering x belongs to a intersection b a delta where norm of x minus a less than delta. Is it okay now? यस सर, डन. Done? Okay, everybody understand? Yeah, I explain again. आप बताओ तो मुझे पता चलेगा प्लीज. यस, सचिन को पता चल गया. ओके, पार्थ? यस सर, पता चल गया. ओके ओके, चलो सबको तो नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं. ओके चल, दैट मीन्स m डेल्टा 2 के साथ m डेल्टा के साथ. नाउ सिमिलरली कैन वी डिफाइन फॉर द इंफिमम? यस और नो? यस सर. सेम प्रोसीजर करना है.
सिर्फ यहाँ पे दोनों साइड पे क्या लेंगे, इंफीमम लेंगे, तो इंफीमम लेंगे, यस, तो इसका इंफीमम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे उल्टी पॉसिबिलिटी आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटा सेट है तो उसका वैल्यू भी छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, बड़ा होगा, यस, वेरी गुड, ओके। सो दैट मीन्स क्या होगा, अगर यहाँ पे दोनों साइड पे आप इंफीमम लेते हो तो क्या होगा, यहाँ पे जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीमम में वो लेस और इक्वल टू होता है, सो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा, ओके। अब ग्रेटर देन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे डेल्टा 2 वाला जो स्मॉल m है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड चला जाएगा, एंड लेस और इक्वल टू आप लगा सकते हो। इज इट ओके एवरीबॉडी? यस सर। इसको दिखाने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी सुप्रीमम के लिए दिखाया है, वही का वही, यहाँ पे 2 स्टेप ज्यादा करना है अगर करना है तो, नहीं तो फिर चलेगा। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन, ओके। नाउ वी कैन टेक द सब्सट्रैक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ राइट हैंड साइड। तो यू कैन सी m of f y delta 2 minus m of f y delta 2 which is always less or equal to capital M f x delta minus M f x delta, yes or no? This is true. Is this true? Yes sir, true. है ना, देखो क्या किया है, जिसको नहीं पता चलता है उसको मैं दिखाता हूँ। ये तो एज इट इज रखो, इसमें कोई चेंज नहीं, बट इफ यू गो विद द माइनस m of f y डेल्टा 2 देन इट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m of f x डेल्टा, यस और नो? Yes, sir. Now subtract both sides, so f y delta 2, okay, minus m f y delta 2 less or equal to capital M f x delta minus small m f x delta, and that is our statement, this one, 0.6. Is it okay now? Yes, sir. Okay, now if you remember, then you already proved that, claim करने से पहले क्या प्रूव किया था, m of f x delta minus m f x delta less than epsilon. So this is automatically, this one is less than epsilon. Epsilon था या delta था, sorry, yes, epsilon, okay. So this is less than epsilon, so we can say that m of f y delta 2 minus small m f y delta 2 which is less than epsilon, yes or no? Okay, अब ये हो गया, तो if you apply the limit, okay, then go for the oscillation, then you will get the epsilon. Yes sir. Okay, so this gives us OFY less than epsilon, so we can say that y belongs to r raised to n minus b, क्योंकि y का ऑसिलेशन लिया ना हमने, और यहाँ पे OFY लेस देन एप्सिलॉन आया तो वो b से बाहर चला गया, यस और नो? Yes sir, done. ओके, ये बाहर चला गया, दैट मीन्स आवर क्लेम इज प्रूव। आवर क्लेम क्या था कि x बिलोंग्स टू बी एक्स डेल्टा विच इज सबसेट ऑफ r रेज टू n माइनस p, सो वी प्रूव फॉर दी y, है ना, ये y पूरा y जो था उसके लिए प्रूव किया, तो अगर ये y भी होता है देन सिमिलरली वी कैन से दैट फॉर दी x, सो आवर क्लेम इज प्रूव, यस और नो एवरीबॉडी? Yes sir. Yes, sir. ओके, चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लो, आपको मैं 2-3 मिनट्स दे रहा हूँ, प्लीज लुक एट एवरीबॉडी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी स्टेप देन डिस्कस विथ मी, ओके, आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता जाऊंगा तो आपको इतना जल्दी पता नहीं चलेगा, बट इफ यू सी और इफ यू वेरीफाई स्टेप बाय स्टेप देन यू विल गेट योर
clear concept. Okay, please look at here everybody. I'll give you 2 to 3 minutes. 1 to 1 line to line जाओ और कहीं पर भी डाउट है then we can discuss. Okay, you can write down also. अगर आपको write down करना है तो ऊपर भी कर सकते हो. ये मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ाया था तब मैंने इसको पूछा था एग्जाम में. सो उस तरीके से भी आप सोच सकते हो. ओके, और सारी लाइन देख लो तो बताना, तो स्लाइड चेंज करूं. तो चेंज करो ना. बाकी सबका हो गया. एवरीबॉडी verify all the lines. Change the slide. Okay, okay, change the slide. Yes, this one. Well, sir. Okay, very good. Sir, wait. Okay, okay. What about others? Have you gone through line by line? Please reply. Change. Okay, Mega, Parth, Rejoice, done. Can we change? Yes, Okay, sir. sir. Okay. Yes. Next one. Answer. Okay. What about others? हो जाए तो बताना, हाँ, everybody.
सर यस सर यहाँ पे हमने जो सेकंड केस कंसिडर किया कि x बिलोंग्स टू a है पर x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, यस तो उसके साथ हमने वो केस क्यों कंसिडर नहीं किया कि x बिलोंग्स टू a है और फिर x बिलोंग्स टू b भी है। नहीं नहीं, फिर से x बिलोंग्स टू a भी है, x तो वो तो a में होगा। फॉर एग्जाम्पल यस, आप क्या बोल रहे हो मैं पहले पूछ लूँ आपको, फिर वी कैन डिस्कस। ओके, हमने देखो यहाँ पे कितने केसेस लिए, चलो यहीं पे डिस्कस करते हैं। ओके, जिसका बाकी है प्लीज आई मूव अगेन। ओके, डोंट वरी। ओके, सो हमने केस 1 क्या लिया, x इस नॉट पे बिलोंग्स हमने टू, लिया x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यस का एंड केस केस, हमने ये लिया कि x बिलोंग्स टू a। अभी यस x बिलोंग्स टू a के साथ में हमने ये लिया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यस यानी x बिलोंग्स, अभी हमको तीसरा केस हमने क्यों नहीं लिया x बिलोंग्स टू b वाला। x बिलोंग्स टू b क्यों नहीं लिया, ऐसा ना। हाँ तो यहाँ पे 1 मिनट, आई वेरीफाइड देन आई एक्सप्लेन यू। ओके, गुड क्वेश्चन है जयवीर, लेकिन x बिलोंग्स टू b मुझे याद था ये कोई ना। ओके, अब x बिलोंग्स टू b लिया होता जयवीर, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्या होता। b लेते तो इधर b की डेफिनेशन के हिसाब से वो उसका ऑसिलेशन है वो ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाता। यस तो देन, फिर हमको उसको वो भी तो दिखाना पड़ता ना, ओ क्लोज्ड। हाँ तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाता ना फिर जयवीर, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग दिस इज क्लोज, सो वी आर टेकिंग दैट दिस वन इज ओपन, यस और नो। यस सर, पर सर हमें b को अगर क्लोज प्रूफ करना है हाँ तो r⁻n - b को हम ओपन प्रूफ कर देते हैं। हाँ, तो r⁻n - b को हम ओपन प्रूव कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास एक और केस ऐसा भी तो बचा ना कि x a में है, मतलब x b में भी बिलोंग करता है और a में भी है। हाँ तो सही बात है आपकी, लेकिन देखो ओपन है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको ओपन दिखाने के लिए। एक ओपन बॉल वो r⁻n - b में एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। Yes, that means we can take that x belongs to b, x delta, which is subset or equal to r⁻n - b. बट अगर हम x belongs to b लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पूरा फॉल्स हो जाता, क्योंकि r⁻n - b में हमने b को तो रिमूव ही कर दिया है जेबी। डू यू गेटिंग माई पॉइंट, नाउ अंडरस्टैंड, यस सर। है ना। अगर b कंसिडर करते हैं तो फिर ये हम नहीं ले सकते, r⁻n - b के साथ डील नहीं कर सकते। फिर वो नहीं दिखा सकते उन लोग। यस यस, ओके, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये 3 ही बचा था कि x नॉट बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, और उसमें भी 2 पार्ट है ना। अंडरस्टैंड, कौन कौन से, y बिलोंग्स टू a एंड y और नॉट, y डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यस। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये रिमूव हो जाता है, हाँ हाँ। considering r⁻n - b, क्योंकि we are dealing with complement of b, so we cannot consider or we cannot discuss about b. Okay, यस सर, डन। और दूसरा भी हम क्या बोलते हैं कि अगर क्लोज दिखाना है तो वी ऑलवेज गो थ्रू दी ओपन, है ना, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि जो ओपन सेट नहीं है इट इज क्लोज, यस और नो, यस सर। है ना। तो इस हिसाब से हमको देखना है। नाउ क्लियर, यस सर, क्लियर। ओके, एवरीबडी देख लिया सबने यहाँ तक, गुड क्वेश्चन। Yes, sir. ओके,
Okay, good question, Jaivi. Your question is valid. Okay, but the solution is this way. Okay. Next one, 1.3. This is the exercise for you. Okay, लेकिन try करना. अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मुझे बताना, वी कैन डिस्कस. अगर ट्राई किया है तो डिस्कस कर सकते हैं. ओके, अगर नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं. वी विल नॉट आस्क इन एग्जामिनेशन, बट दिस इज फॉर योर नॉलेज ओनली. So you can take a picture. Okay, now we go for the next part, that is our lecture number 5. Okay, yes, is it visible everybody? Yes, sir. Okay, so now next topic is linear transformation for Rn to Rm. चलो पहले मुझे बताओ कि what is the definition of linear transformation in R? Anybody? U and V are both vector space, both real or complex. Then define a mapping from U to V such that T of x plus y is equal to T of x plus T of y for all x y belongs to U, and T of alpha x is equal to alpha T of x where x belongs to U and alpha be any scalar. Then we can say that T is a linear transformation from U to V. Very good, Jay, very good. Okay, everybody, आपको पता है या भूल गए हैं? यहाँ पे देखो, if T from V to W and V and W both are the vector space, okay, then if you have another alpha and beta which is belongs to scalar quantity, scalar field F, okay, means F में से field में से अगर आप लेते हो, then your linear transformation कब बोल सकते हैं हम उसको? If T of alpha of V1 plus beta of V2 and V1 V2 both are belongs to V equal to alpha times V1 TV1 plus beta times TV2. Is it okay, Devi? Okay, sir. Everybody, this is the simple definition. T from V to W, if you have the mapping and alpha beta belongs to scalar field F and V1 V2 belongs to domain, then if you write down T which satisfy this, then you can say that T is the linear transformation. That means T of alpha V1 plus beta V2 is equal to alpha T V1 plus beta T V2. You can say by definition also, this is the linearity property. हम इसको linearity property बोलते हैं कि नहीं everybody? Yes, sir. Okay, so अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है इसको तो उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे. अगर कोई ऑपरेटर करता है तो लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे. तो इस हिसाब से आप उसको रिलेट करो, है ना, तो आपको इजीली याद रह जाएगा. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now what about in Rn to Rm? चलो वही प्रॉपर्टी है. देखो, a function T from Rn to Rm, this is vector space. हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था. This is also vector space. Yes or no? Yes, sir. Is said to be linear transformation और linear map. उसके तीन नेम है देखो, और linear map और linear function if T of x plus y is equal to Tx plus Ty, where xy belongs to R raised to n, and T of alpha x is equal to alpha T of x, alpha belongs to any field R, okay, and x belongs to R raised to n. If this map or this function T satisfy both the property, then you can say that it is the linear transformation in Rn to Rm. Everybody got it? पता चल गया? वही की वही डेफिनेशन है, बट यहाँ पे जो हमको दो वेक्टर लेना था, मीन्स दो हमको एलिमेंट लेना था, वो Rn में से लेना है ना, और जो प्रॉपर्टी था उसको दो तरीके से स्प्लिट करके लिखा ताकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसीलिए. सो एनी डाउट इन द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? No, sir. No, sir. नो? ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट थियरम. उसको हम बाद में प्रूव करेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट देख लो. Let T Rn tends to Rm be a linear transformation, then there exists an n cross m matrix A11, A12 up to A1m, A21, A22 up to A2m, An1, An2 up to Anm, n cross m, such that
T of x is equal to x a, x belongs to r raised to n. मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको एक मैट्रिक्स हिस्सा मिलेगा जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स T of x is equal to x. Understand everybody? And the order of this matrix will be the n cross m. मीन्स इसका जो डायमेंशन है और इसका जो डायमेंशन है that is the n cross m. Okay? Understand everybody? What is the meaning of theorem? Done? Yes sir. Yes sir. Okay, so we prove this one in the next class, but I give you homework. एक homework दे रहा हूँ, सब लोग सुन लेना. Homework is that find out 2 to 3 example of linear transformation. Okay, कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं इसीलिए हम डिस्कस करेंगे. उसको कहीं पे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मुझे बताना है कि सर दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके एवरीबॉडी? Okay, sir. Sir, can you please send the lecture 4 PDF? Yes, yes, yes. I send this lecture 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 नहीं भेजूंगा, sorry. सर 4 4 तक की भेज देना ना. 4 ही बाकी है. 1 2 का तो है, 3 का भी है. नहीं 3 का भी नहीं है. Okay, 4 तक भेज देता हूँ, है ना? हाँ सर. Okay, okay. Is there any doubt, any question?